Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to study this mathematical logic topic. There may be two questions based from this topic. So 4 marker. Again, this topic is for 4 marks. And this is very easy bonus marks from this topic. See. Yes, any doubt? I'm reading your chat. Okay. Wait 1 minute. So I think in your while preparing your board exam, you have studied this topic. So within 2 to 3 minutes, I'll explain once more what are the content of this topic. See, you know what is statement? A declarative sentence which is either true or false, but not both at a time. It is called as logical statement. Sir, zoom in, please. Okay, okay. Now is it clear? Okay. So you know what is logical statement in logic? A declarative sentence which is either true or false, but not both at a time. It's called statement in logic. What is its truth value? Whether it is true or false. Suppose that 2 plus 3 is equals to 7. Whether this is logical statement or not. 2 plus 3 is 5, you know that. But here its answer is false, means truth value is false. So it is logical statement. Now what is your name? Suppose that this question is there. So this is not logical statement, okay? Because its answer is not in true or false. Now, what are the logical connectives? Suppose that there are two statements. P statement or may have 31 days and Q there will be Diwali in May. Okay, so there are two statements. First is may have 31 days and second is there will be a Diwali in May. So you know what is its truth value. So if you connect these two, so if you connect P and Q with this symbol, then they are called as, this symbol is logical connective. So what are the different logical connective? This is called as AND. So P and Q. The answer will be in May, there may have 31 days and there will be Diwali in May. Similarly, if it is OR, then there will be may have 31 days or there will be Diwali in May. If it is conditional, then may have 31 days. If may have 31 days, then there will be Diwali in May. And biconditional, may have 31 days if and only if there will be a Diwali. Okay. So in this way, you can connect two or more logical statement by using logical connectives.
Now truth table already you know. So if you consider two statements, if two statements are there, then 2 to the power 2, that is 4 possibilities. If three statements PQR, if it is P and Q, then 4 possibilities. If PQR, three statements are there, 2 to the power 3, that is 8 possibilities are there. Okay. So here I have considered only two statements, so P and Q. So all the possibilities are both true, both false, first true, second false, or first false, second true. Now in this, you know what is truth table of AND. AND is true if and only if both are true. AND is true if both are true. You know, rest of the case is false. OR is true if at least one is true. See here, at least one is true, then true. If both are false, then OR is false. Then if then, for AND the another name is conjunction, for OR it is disjunction. If then, that is called as conditional. So, and this is if and only if biconditional. In both the cases, if both are true, then conditional and biconditional true. If both are false, in that case also conditional and biconditionals are true. But and rest of the cases where TF and FT, this biconditional is false. But for conditional, only one thing is there. What is the difference between conditional and biconditional is that if TF and FT is there, then whatever the second, that is your answer in TF or FT case. So second is false, so it is false. Second is true, it is true. Okay. So except this, in all the cases, you can change the order. Suppose that P or Q is equals to Q or P, right? P biconditional Q is equals to Q biconditional P, but P conditional Q is not equals to Q conditional P always. Okay. Yes. Q false, P true, Q false. Where? Any doubt? Okay. So only in conditional order is important. Now again, not or negation. In negation of T is F, negation of F is T. That you can easily understand. Yes, any doubt? Now statement pattern. Only this one more page is there. After that, we'll start taking MCQ. Now you know that statement, you know. After that, what are the logical connectives, that also you know. And suppose that P or Q conditional negation P. So this is a statement. Okay. You have to draw the truth table of this. Suppose that P and Q, only two things are there. So P, Q. So TT, FF, TF, TF. Okay. Now OR. First you have to take P or Q. So in OR case, at least one is true, then it is true. So first true, second true, third true. And the last one is false. And then I have to find negation of P also. So I'll find negation P here. So whatever P, right, it's opposite. So T will convert it to F, F, T, and T. Okay. Now column number 1, 2, 3, 4, and 5. I have to find column number 3, conditional 4. So you know that in conditional order is important, right? So what is second? Negation P. So this one is second and this one is first, right? First you find out whether both true or both false cases. Here both true. So here first I will write true. So in rest of the cases TFFT mixture is there. So
in that case where T and F is mixed, then second one is the answer. So second one is negation. So I will write second one, this false, here false, here true. So this is the answer of P or Q conditional negation P. Understood? So this is the answer. Now, if all are true, then it is called tautology. So this statement pattern, whether this is tautology, no, because these are mixed. All are F, then contradiction. Here all are F not there. There is a mixture of P and F. So this statement pattern is contingency. Okay, there may be a given statement and you have to find whether tautology, contradiction, or contingency, or fourth option none, or anything may be there. Okay. Sir, the red isn't visible. Okay. From next time, I will not use red pen. You want explanation of this? While solving MCQ, I will take once more. Okay. Sir, can you explain how to find logically equivalent fast, because there's not enough time when you solve questions. Okay, okay. Wait 1 minute. Now only you want explanation of this? Yes. Equivalence. Okay. The statement pattern is equivalence. You have to find whether by using truth table, that you want to ask. So that Yes. such kind of, yeah, I know that. Understood. So but one simple example I will take. Prove that or show that. Or logical equivalence, same way. Suppose that P and Q. इसका negation क्या आता है? Negation P and negation Q. This I know. And this statement pattern, you have to show whether this is equal or not. So what I'll do, there are two statements, P and Q. So obviously I know that there are possibilities 4. Sir, negation P और क्यों नहीं होएगा negation Q? हाँ, right here or. Right. Sorry. And का हो जाएगा or. Wait. Okay. Now PQ. How to find first P and Q? TT, FF, TF, TF. Now and in and case, if all are true, then it is true, otherwise false. So this is true, this is false, this is false, this is false. Now I have to find its negation. So column 1, 2, 3. Negation of 3. So it will be negation of P and Q. So it will be negation of this. T will be F, F will be T, F will be T, and F negation is T. So LHS I have solved. Now RHS. Now I have to find individual negation T and negation Q. So negation P and negation Q. And then negation P or negation Q. So what is negation of P? FFTT. Because already TTFF का opposite FFTT. Now negation of Q. TF का FTFT. TF का opposite FTFT negation. And now I have to find OR. OR means if at least one is true, then it is true. This is true. This is true. Okay. Now column number this 3, this was 4, this was 5, 6, and 7. Now see, in column number, this and this are same, see, right? So from column 4 and 7, logical equal. Okay. So this was the question from your side, right? Yes, sir. Thank you, sir. Oh. Now next,
अभी मुझे बताइए, I was explaining whether tautology, contradiction or contingency. So that statement pattern last, if you will consider column number 4, then it was mixed, so it was contingency. Now what is the meaning of this conditional and biconditional? See, चालू था, सवाल ही चालू है पेपर। yes, सवाल ही से पानी चालू है नाने के पास। look here. Now two things are very important. कंडीशनल जो होता है ना, उसका लिटरल मीनिंग क्या है और बाई कंडीशनल का मीनिंग क्या है? सी, आपको एक रिजल्ट पता है, पी कंडीशनल क्यू का निगेशन आता है। सो ओके, पी कंडीशनल क्यू अगर होगा तो उसका अगर निगेशन आपको फाइंड आउट करना है तो आपको आता है पी एंड निगेशन क्यू। दिस रूल यू नो दैट, ओके। बट पी कंडीशनल क्यू का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? सो पी कंडीशनल क्यू मीन्स कंडीशनल, ये गेट आप रिप्लेस कर सकते हो एंड या और से, अंडरस्टूड? सो एक्चुअली दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और इन कंप्यूटर साइंस लॉजिकल गेट्स, ओके। उसमें आप कंडीशनल या बाई कंडीशनल ये गेट्स रिप्लेस कर सकते हो एंड या और से, ओके। सो द मीनिंग ऑफ दिस पी कंडीशनल क्यू इज negation p or q, negation p or q. And meaning of this biconditional is first p conditional q and q conditional p, and if you again further simplify this, that will be negation p or q and negation p and q. Okay, negation p or q and negation q or p, negation q or p. So it is negation q or and p, sorry. Understood? Sir, Yes. so how can we write p conditional q in form of and? P conditional q in form of And. Okay. And or, what I have written, and or. So in form of negation p or q only you can write. In this format only you can write. Understood? Okay. अगर sir. तुझे एंड में भी रिप्लेस करना हाँ. है तो उसे और निगेशन अगर लेता है तू तो p हाँ. और निगेशन क्यू हो जाएगा, Okay. सॉरी एंड हो जाएगा। अंडरस्टूड? Okay, sir. यस। Thank you. नेक्स्ट, so conditional by conditional, this I'll rectify. Okay, this was or, right, and this was q and this was p. Now next, laws of negation. What are the laws of negation? See, कोई भी स्टेटमेंट नेगेशन का नेगेशन होता है खुद स्टेटमेंट, एंड का नेगेशन होता है नेगेशन p और नेगेशन q, और का नेगेशन होता है नेगेशन p एंड नेगेशन q। बाय कंडीशनल, दिस इज इंपॉर्टेंट, सॉरी कंडीशनल, कंडीशनल का होता है p एंड नेगेशन q, एंड फिफ्थ बाय कंडीशनल का नेगेशन p एंड नेगेशन q और negation p and q. So again here it will be q and p, q and p. Okay, so this is the negation, laws of negation. Understood? खुद का नेगेशन का नेगेशन खुद स्टेटमेंट, एंड का होता है और इंडिविजुअल नेगेशन, और का नेगेशन होता है एंड इंडिविजुअल नेगेशन, कंडीशनल का होता है
P and negation Q biconditional का ये होता है. Okay. Next. Now algebra of statement. Is it visible? So direct question करो. Okay. So if you want to take screenshot, you can take screenshot. अभी हम direct question करेंगे. Okay. Sir, you can explain these laws once. Okay. Once Sir, how to take screenshot? Yeah. Sir, how to take screenshot? Huh? How to take screenshot? Screenshot in your mobile you can take, no? Sir, iPhone में कैसे करते हैं मतलब? अच्छा ठीक है. Use the assistive touch. Yeah. Okay. What, sir? See, I'm sending PDF of this after this Okay. lecture. Don't worry. Thank you. So I'll explain within 1 to 2 minutes. See, आपको तो ये पता है. Commutative law तो पता है आपको. P और Q और P होता है. ये तो पता है. मीन्स ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो. मैंने बताया ट्रुथ टेबल में भी. इंपॉर्टेंट लॉ क्या है? P एंड P. खुद के साथ एंड अगर होगा तो P होगा और खुद के साथ और भी होगा तो ही P होगा. सपोज दैट P मैंने फॉल्स ले लिया है. फॉल्स एंड फॉल्स तो आ जाएगा फॉल्स ही आ जाएगा. ट्रू एंड ट्रू ये भी ट्रू ही आ जाएगा. मींस जो खुद है वही आ जाएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट लॉ. कम्यूटेटिव लॉ हो गया. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? P एंड सो ब्रैकेट शेयर कर सकते हो. पहले यहां पर ब्रैकेट डाल सकते हो. ओके. नेक्स्ट सेम एंड और के लिए दोनों केसेस के लिए बताया है. देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी P एंड Q और R अगर होगा तो P एंड Q आएगा पहले. इसने इसे मल्टीप्लाई करो और सॉरी मिडिल और P एंड R. Understood? So you can write this as ये तो आपको पता ही है. P and Q or R and sorry or P and Q or R. Understood? You simplify, you will get this answer. This P and Q or P and R. Similarly with or and. Now De Morgan's law. रूल्स ऑफ नेगेशन में ही हमने देखा है. नेगेशन ऑफ एंड का क्या होता है? इंडिविजुअल. नेगेशन का और हो जाता है और का भी इंडिविजुअल एंड हो जाएगा. नाउ आइडेंटिटी लॉ. कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो, उसका P के साथ अगर एंड लेते हो आप, अगर P आपका ट्रू है, एंड ले लिया तो ट्रू ही आ जाएगा. मींस वो खुद स्टेटमेंट ही आ जाएगी. अगर फॉल्स ले लिया तो जो स्टेटमेंट है वही आ जाएगी. राइट. सो P एंड T आ जाएगा P and F आ जाएगा F. So this was there. Next. कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? खुद के साथ, खुद के निगेशन के साथ अगर आप एंड लेते हो फॉल्स आ जाएगा और लेते हो, एक तो P2 ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, या फिर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा. मींस एटलीस्ट वन ट्रू यू आर गेटिंग. सो इन और केस इट इज ट्रू. एंड केस में एक तो P ट्रू होगा तो ये F होगा. मींस अल्टरनेट आ रहा है. एटलीस्ट मींस बोथ ट्रू नहीं आ रहे, फॉल्स. नेक्स्ट कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ मैंने तो बता ही दिया है. लिटरल मीनिंग क्या होता है उसका वो भी बताएं. कंडीशनल है, बाय कंडीशनल. एब्सॉर्प्शन लॉ जो भी है एंड और होगा तो P आ जाता है. Next. Now last after that we'll start taking questions MCQ. ये ज्यादा नहीं बताऊंगा, फटक से हो जाएगा ये भी. Now see, what is converse, inverse and contrapositive? Converse, inverse और contrapositive आप conditional statement का ही ले सकते हो. Suppose that converse ले लिया, suppose that surface area या radius increases, Q ले लिया, volume increases. So
statement of P conditional Q, that is if radius increases then volume increases, right? So इसका converse क्या आ जाएगा? Converse आता है Q conditional P, means second वाला, if volume increases then radius increases. Inverse क्या आ जाता है? Negation P conditional negation Q, means if radius not increases then volume does not increase. And contrapositive क्या आता है? Contrapositive आता है negation Q conditional negation P, means if volume does not increase then radius does not increase. Okay, so ये order ध्यान में रखो. Any doubt in conditional by converse, inverse, contrapositive? If you have any doubt, you can write in a chat box. Yeah, circuit is not coming, I know that. See, ड्यूअल भी क्या है एक बार बता देता हूं, क्योंकि अगर बाय चांस अगर आ गया तो. सी ड्यूअल अगर स्टेटमेंट है नेगेशन P और Q, रेड पेन इज नॉट विजिबल, ब्लैक. So negation P and Can you zoom? yeah. Now see, ड्यूअल में क्या कोई तो स्टेटमेंट हो जाएगा. ये दिया है आपको, राइट? इसका ड्यूअल निकालना है. ड्यूअल में क्या होता है? एंड को रिप्लेस करना है और से, और को रिप्लेस करना है एंड से, टी मींस टोटोलॉजी को रिप्लेस करना है, सी मींस कॉन्ट्रडिक्शन से, सी कॉन्ट्रडिक्शन को रिप्लेस करना है टी टोटोलॉजी से. सो नेगेशन एज इट इज रहेगा, और का बन जाएगा एंड क्यू, कंडीशनल वैसे ही रहने दो. अगर इसे सिंप्लीफाई करके भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप. अंडरस्टूड? अगर वन मोर स्टेप आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो पहला इस कंडीशनल सिंबल को हटा दो. सो एक्स कंडीशनल वाई क्या होता है आपको पता है. सो इफ यू कंसीडर दिस इज एक्स कंडीशनल वाई अगर होगा, नॉर्मल नहीं होगा. हाँ उस पार्ट में इनवर्स है उसका नॉर्मल नहीं होगा. स्टार्ट में, यस स्टार्ट में इक्वल्स टू, अच्छा मैंने पहले जैसा बताया था, मिस इंक्लूडिंग दैट सिंबल यू आर टेलिंग, मींस आई थिंक यू आर आस्किंग मी ड्यूअल मींस नेगेशन, सिर्फ आपको एंड को और को एंड से रिप्लेस करना है. कंडीशनल ऐसे ही रहने दो, ये पी ही है, ये एंड को और से रिप्लेस कर दो, टी को सी से रिप्लेस कर दो, दैट्स ऑल. ओके, इनवर्स का नॉर्मल है होगा, इनवर्स का नॉर्मल नहीं होगा. हाँ, इनवर्स का चेंज नहीं होगा बेटा, इनवर्स का नहीं चेंज होगा. एंड का और का एंड, टी का सी का टी, बस दैट्स ऑल. एक्चुअली ड्यूअल जो है आपका सिलेबस से ओमिट किया गया है. ओके, और मैं एक स्टेप बताना चाहता था, जो कि अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होगा, एंड और में ही ऑप्शन है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर दो. इसका आएगा फर्स्ट एज इट इज, एंड सेकेंड का निगेशन होता है. ये मीनिंग हो गया. अब इसका ड्यूअल क्या होगा? नेगेशन पी, और का एंड हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, नेगेशन का निगेशन ही रहेगा, एंड का और हो जाएगा, टी का सी हो जाएगा. ओके, एनी डाउट? बट दिस ड्यूअल इज ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस. स्विचिंग सर्किट क्या होता है एक बता के आगे चलते हैं. देखो, स्विचिंग सर्किट पैरेलल अगर होगा, बाय चांस अगर गलती से भी क्वेश्चन आ गया तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि सीईटी के इस साल के बुकलेट में मार्वल में ये दिया है. देखो, S1 जो स्विच है उसे P ले लो, S2 को Q ले लो. S2 है मिस इसका डैश है, मिस नेगेशन Q, S3 को R, राइट? नाउ L अगर सीरीज में है तो एंड होगा, पैरेलल में होगा तो और होगा. सो पहला करंट यहां से ऐसा फ्लो हो रहा है. सो फर्स्ट टू दिस स्विचेस आर इन एंड, सो P एंड Q, इसी को है और नेगेशन Q.
बाद में इसको एंड है R. So this is logical equivalence, or this is in switching form and this is in symbolic form. Okay. So switching circuit is also omitted, but there was question 2-3 questions based upon this, so I have explained here. And the last thing, इसमें होता है switching table. ये तो आपको पता है, T को 1 और Q को F को 0. So there may be switching table. Instead of that, PQ जो है 1 1 0 0 0 1, sorry, TFFT. So 1 0 Sir, 1 0. Yes. sir, Yes, this was no. there for us in deleted portion. Yeah, I know that. Sir, So can I'm you explain the yes. switching circuit once again? Yes. स्विचिंग सर्किट में अगर सीरीज में है तो एंड होता है, पैरेलल में है तो और होता है. ओके तो देखिए ये पहले दो सीरीज को एक पैरेलल है, मींस ये क्या है, S1 मींस P है, सीरीज होगा, देखो सीरीज एंड पैरेलल और होता है, राइट. सो स्विच 1 एंड स्विच 2. सो फर्स्ट आई विल राइट इन स्विचिंग फॉर्म, S1 एंड S2. अब ये दोनों को और है S2 डैश. अब ये तीनों को एंड है सीरीज में S3. सो S1 S2 S3 यू कैन रिप्लेस बाय PQR. सो इट इज P एंड S2 क्या है, Q, और S2 डैश नेगेशन Q एंड S3 क्या है, R. अंडरस्टूड. सो दिस इज L, सिंबॉलिक फॉर्म. इसी का ट्रूथ स्विचिंग टेबल कैसा होगा, P Q. So 1 1 0 0 0 1 0 1 0. So instead of T you take 1, instead of F you take 0. So this was omitted, then but What yes, will come for negation? If you have negation value, then will there be something in the circuit? yes, yes, yes. Negation वही बेटा देख. So P Q. So it is 1 1 0 0 1 0 1 0. Okay. Now P and Q. And में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, मींस 0. अभी नेगेशन है, नेगेशन Q जो है 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, राइट. सेम रूल. ओके. सर वो S2 डैश गिवन है कि आपने अज्यूम? S2 डैश गिवन है बेटा, क्या है इधर, S2 डैश दिया है. ठीक है, ठीक. ओके. सर तो S2 डैश के पे S2 भी आ सकता था ना, नेगेशन के Q भी दे सकते थे. S2 भी आ सकता है, नो डाउट. इधर फिर से S1 भी आ सकता है, एनीथिंग. ओके. Okay, thank you. या आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्विचिंग सर्किट. इसे सिंप्लीफाई करना है, वो प्रॉपर्टीज यूज करके, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करके सिंप्लीफाई करना है. और एक सिंप्लीफाइड सर्किट अगर कुछ रिड्यूस हो सकता है, इसको P एंड Q फॉर्म में लिखा, तो दिस इज सिंप्लीफाइड वन, सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट, राइट. और उसका ट्रुथ टेबल कंक्लूजन निकालना है. सो दिस वाज देयर. सर ये तो सर? नहीं आएगा ना डिलीटेड क्वेश्चन में? हाँ, स्विचिंग सर्किट जो है डिलीटेड पार्ट है, इसलिए मैंने जल्दी से बताया. अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है तो आप कुछ ना कुछ तो कर पाओ, इसलिए मैंने बता दिया. ओके. सर ड्यूअल, हाँ यस. एंड सर समझो S1 into S2 किसी पे डैश आ गया तो मतलब वो नेगेशन हो गया ना, हाँ, किसी के भी ऊपर डैश आ गया मींस नेगेशन हो गया. एंड Okay. डैश है तो मतलब नॉर्मल है. या डैश नहीं तो नॉर्मल है. ओके ओके, थैंक यू सर. So dual and switching circuit, this part is omitted from your syllabus. Next, for this year, if you are going to appear for next year, then it will be there. One minute.
So from now onward, I will do like this. So I'll get more space. Okay. देखो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, आप सॉल्व मत करो, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। चलो P क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। मुझे बताइए कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है क्या? इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स? राइट इन ए चैट बॉक्स। ट्रू। ट्रू, वेरी गुड, ट्रू लिख रहे हो। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। तो मुझे बताइए जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, नीदर है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल। सो P आपका फॉल्स है, क्योंकि हर एक रियल नंबर जीरो का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आता है। सो यही पहला फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, पहला क्या है 5 + 4 9 आता है बट 11 है, मींस सेकंड भी क्या है आपका फॉल्स है ना। एंड थर्ड, अरे भैया ये तो करती जा। यस नाउ थर्ड, सर रियल नंबर बोला है तो उसमें जीरो कैसे आएगा, क्योंकि जीरो होल नंबर होता है ना सर। नेचुरल नंबर Yes, बेटा। sir. सी रियल नंबर में आएगा ना वो, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा। अंडरस्टूड? ओके। नाउ R क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन नंबर। ऑड नंबर ले लो 7, उसका स्क्वायर 49, इवन है क्या? नहीं है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रूथ वैल्यू ट्रू? इसमें से ट्रू कौन सा है मुझे बताइए। हाँ, डी। देखो ये P, Q और R तीनों भी फॉल्स आ रहे हैं, सो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अंडरस्टूड? दिखने में छोटा लगता है क्वेश्चन बट इसका आंसर थोड़ा अलग है। अभी ये वाला देखो, ये वाला बराबर है क्या? नेगेशन ऑफ P, P क्या है F, एंड नेगेशन ऑफ Q क्या है F, एंड नेगेशन ऑफ F। अंडरस्टूड? सो नेगेशन ऑफ F T होता है, एंड ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, ये दोनों का ट्रू का ट्रू होता है, एंड सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ट्रू। अंडरस्टूड? So what does this truth value T mean? किसका? The following as a, yes sir, last में लिखे which of the following as a truth value T, उसका मतलब क्या हो गया सर? हाँ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा का आंसर ट्रू आएगा? सो इसका आंसर तो फॉल्स आ रहा है, इसका भी आंसर फॉल्स आ रहा है, इसका भी आंसर फॉल्स आ रहा है, इसका आंसर ट्रू आ रहा है। सो इसमें से कौन सा आंसर ट्रू आ रहा है? अंडरस्टूड? Okay. हाँ, क्लियर हो गया? Got it. Thank you. Oh, next second question. देखो सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल मुंबई नहीं है, दिल्ली है। तो पहला वाला P वाला फॉल्स हो गया, राइट? नाउ x² - 5x - 6 = 0 where x = 2। एक्चुअली ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है क्योंकि इसका आंसर अलग दिया होगा। देखो क्यों, क्योंकि पहला एक लेक्चर था इसमें मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था तब मुझे पता चला। देखो क्यू में क्या है, अगर वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आएगा 4, तो अगर +6 होएगा ना तो करेक्ट है। -6। हाँ, यहाँ पर +6 होना चाहिए, यहाँ पर +6 होना चाहिए, +6 होगा तो ही आंसर आ जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंड R में डिविजिबल बाय 9, ये 829 तो 9 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, सो R भी फॉल्स है। सो विच हैज ट्रूथ वैल्यू ट्रू, ये प्लस अगर होगा तो ये ट्रू है। सो तो करना तो बोनस ही मिलेगा ना ऑप्शन। हाँ, ओके ओके, सो Q आपका ट्रू आ रहा है, राइट? ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग है, क्योंकि अगर ये ट्रू है, हाँ, और P और Q ये तो दोनों भी फॉल्स है ना, तो दोनों भी फॉल्स है तो ये फॉल्स ही आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, दैट इज Q। ओके, नेक्स्ट
थर्ड वाला देखो, आई होप यू अंडरस्टूड। ये प्लस है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, सो क्यू ट्रू आ रहा है, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन? p, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बराबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है इसके ऊपर होल नंबर है, राइट? सो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सो p स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है। नेक्स्ट, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 हैज टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स आएंगे हाँ ना, सर, ट्रू है, ट्रू। तो q भी ट्रू है। एंड r, 1 इज अ प्राइम नंबर which of, okay, 1 is prime number, 1 तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, राइट? सो r फॉल्स है आपका। सो which of the following is false? सो r इंडिविजुअल दिया है, ठीक है, r आएगा। अंडरस्टूड? ये नहीं होगा क्योंकि दोनों भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। सो ये फॉल्स आ रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपको लगता है मिसप्रिंट होगा, बट ये मिसप्रिंट नहीं है। देखो, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो फॉर्मूला है ही बराबर, राइट? वेयर थीटा इज मैंगो, डिफाइन किया है, थीटा मैंगो डिफाइन किया है, इसका मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ रहा है, चलो जाने दो, ओके, ट्रू या फॉल्स आ रहा है, ओके। तो हमें पूछा है स्टेटमेंट है कि नहीं, बस इतना पूछा है। सेकंड में sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये बराबर है थीटा फॉर ऑल थीटा। ऑल थीटा आपको लगता है ये करेक्ट है, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि थीटा यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, थीटा वेल डिफाइंड नहीं है यहाँ पर। और sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा फॉर ऑल थीटा, रियल वैल्यूज, ये भी वेल डिफाइंड है। सो सेकेंड वाला वेल डिफाइंड नहीं है। So which of the following statement is not statement? So second वाला Q वाला means B आएगा। Understood? Next time मैं क्या करने वाला हूँ, as it is Marvel के नहीं, कुछ other publication के भी मिक्स करूंगा, तो आपको और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, नेक्स्ट, अभी एक स्टेटमेंट दिया है, आई वांट answers from your side, right? So can you solve this? So for fifth A, Yeah. See, क्या दिया है? This boy रोहित is P में दिया है tall and Q में दिया है handsome. Okay. बी है। Symbolically, tall Sir, B and आएगा। handsome B आएगा। and means B आएगा, B आएगा। Tall but not handsome, tall but not handsome, A A, C आएगा। क्योंकि C Q आएगा। लिखा सर सी आएगा, सी आएगा। C बट आएगा। और C बट और आएगा, एंड एक C में आता है। आएगा। C आएगा, एंड और बट एक में आता है। Okay, okay. This boy is tall, means P. But अगर होगा और होगा तो नहीं आएगा, बट में एंड ही आएगा बेटा। हाँ, एंड सी आएगा सर। Yes, होगा ना, C आएगा। सी आएगा ना, एंड में सी आएगा, राइट? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सर तो बट C है, बट एंड है ना वो। बट के लिए एंड होता है, हाँ, बट के लिए एंड होता है। ओके, नेक्स्ट, सो कैन यू सॉल्व दिस 7th 8th एंड 9th? 7th 8th और 9th आप सॉल्व करो, 7th 8th 9 और 10th सेम कंडीशन। ओके, P says that he is tall and Q says that he is handsome. सेवन 8 9 10 आंसर लिखो चैट बॉक्स में। सेवेंथ बी, 8th ए, राइट।
7th B है, 8th A है, करेक्ट है. Yes. 9 सी है. 9th वाला B A Yes, C sir, C होगा. B A C D, C आ right? C. इसका है B, इसका है A, 10th का D है. C और इसका D है ना. yes. So B A C D. I hope you understood this part. Yes, sir. Okay. So can you explain 9th and 10th one? Okay. 9th and 10th. If what? See, 9th क्या बोल रहा है? It is false that. Means condition क्या है? It is false that. Means negation है. He is short. Short means negation P. क्योंकि P है tall है, तो उसका negation है. और so I'll write here. It is false that Rohit is short or handsome. तो ये मीनिंग है, राइट? अब इसे सिंप्लीफाई करो क्योंकि ये तो आपको नहीं दिख रहा है. इसे सिंप्लीफाई करो. नेगेशन ऑफ ए एंड और बी का क्या होता है? E और negation Q. हाँ, नेगेशन पहला और का बन जाएगा एंड नेगेशन. सो नेगेशन ऑफ नेगेशन इज स्टेटमेंट इटसेल्फ एंड नेगेशन क्यू. So P and negation Q. So P and negation Q is this. समझ में आ गया बेटा? सर तो मतलब बेसिकली नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैं सही बोल सकते हैं? यस. क्योंकि ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा. हाँ. तो अगेन फर्दर सिंप्लीफाइड. ओके. Yes sir. 10th also got it sir. ओके. Thank you. Next. Same way. One more thing is there. I think for you it is not clearly visible. Wait. Sir, it's visible. Okay, is it visible? Yes, sir. Sir, now Yeah. Now solve this. First, P is given, Sam is fat, and Q is Sam is happy. So solve 11, 12, 13, 14. Sir, DBC. DBC 11, 12, 13. Yes, sir. DBC I am Ravi. देखो, Sam fat है और Sam happy है. तो Sam is thin means negation P. But के लिए and happy means Q. So negation P and Q. Negation P and Q आएगा ना, ये आ जाएगा बेटा, D आएगा. ओके. नेक्स्ट, Sam is fat, P और unhappy negation Q. P और negation Q. P और negation Q. Okay. Sam is fat. Sir, B है ना B. B. Okay.
Next, Sam is fat means P. Then, if Sam is fat, then he is happy. Conditional आएगा. So P conditional Q. C. And next, it is cold. Okay, next it is a different one. So this question is different. So I think this is 13th question. Now, P, it is cold, and Q, it is raining. Indicate the verbal form. Negation P. P का negation. It is not cold. Okay, ये तो है नहीं. It is not cold. Okay, ये तो स्टेटमेंट है ही नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो स्टेटमेंट है ही नहीं. सर अगर इज इट हॉट होता तो वो आ जाता ना. हाँ हाँ, अगर इट इज हॉट अगर होता है ना, हाँ, इट इज अगर नॉट कोल्ड या फिर हॉट अगर होता तो भी चल रहा. इट इज हॉट अगर होता, ये डी की जगह इट इज हॉट होगा तो भी चलेगा, बट इट इजंट हॉट बोला है तो वो नहीं है. सो दोनों भी चलेंगे, नॉट कोल्ड और हॉट दोनों भी आए तो भी उसका मीनिंग सेम है. नेक्स्ट, कैन यू सॉल्व दिस? ए 15, 16, 17. 15 का 15 B is option B. हाँ, 15 का बी. ठीक है. 16 सर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? Option, sir, स्टेटमेंट था इट इज कोल्ड, option A or C, sir? और क्यू था इट इज रेनिंग ना. Yes. So it is not cold or it is not raining. cold na? or it is not raining. सी है. It is not C. cold or it is not raining. C. Now So we say negation that P. neither nor It is A. it is It is maybe can neither nor cold raining. neither raining. ए नहीं हुआ क्या? हाँ सर, किसका ये नहीं नहीं हो होगा? किसका बोल रहे हो आप? सकता. हाँ सर, neither nor. 15 का Okay, A जो है उसमें नाइदर कोल्ड नॉर रेनिंग ही है ना, तो फिर A हो Yeah. सकता है. It is not cold or है ना. Neither means both नहीं है. Okay, it is neither cold nor raining means एंड होगा. yeah, cold and raining का उन्होंने ये है, इसका मीनिंग ये है. तो 17 का ए होगा ना. हाँ, इसका मीनिंग ये होगा अगर इसे सिंप्लीफाई भी करोगे आप. ओके, सो 16th का तो यही हो रहा है. इट इज नाइदर कोल्ड नॉर रेनिंग. हाँ, इधर नॉर किस में आता है? एंड में आता है कि और में? और आ जाएगा बीच में और आ जाएगा ना. कोल्ड और रेनिंग का निगेशन, सो निगेशन पी एंड और का एंड बन जाएगा निगेशन क्यू, बट यहाँ पर एंड की जगह और दिया है ना, सो सी ऑप्शन, तो ये नहीं आएगा. ओके, तो 17 तो फिर ये हो जाएगा ना. 17 का देखो, 17 का आप दो चांसेस है. पहला तो देखो इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड स्टार्टिंग में है कुछ, इट इज नाइदर कोल्ड, ओके, एंड नॉर रेनिंग, इट इज नाइदर कोल्ड नॉर रेनिंग, ओके. और दूसरा अगर आप इसे निगेशन बाहर निकालते हो तो ये भी हो सकता है, इट इज नॉट ट्रू दैट. चलो दिस पहला तो ये यहां पर रखो, ये हो सकता है. इट इज नॉट इधर कोल्ड और हॉट, हॉट तो नहीं आएगा ना. सर कोल्ड हॉट एक साथ कैसे है? हाँ, और सर वो एंड ये नहीं होगा. ऑप्शन ही होगा. हाँ, इट इज स्टॉप रेनिंग येट, ये भी नहीं है. इट इज नॉट कोल्ड और रेनिंग, इट इज नॉट कोल्ड और रेनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है देखो. इट इज नॉट कोल्ड एंड इट इज नॉट कोल्ड और रेनिंग है ना, तो नॉट आ गया ना, उधर एंड है. तो डी ही आएगा. और है उधर. हाँ ऑप्शन डी है ना. आंसर क्या है आपके पास? 17, हाँ एक मिनट, 17th ए दिया है सर ये आएगा. हाँ सर ये होगा यही ना. आएगा. क्योंकि यही है. इट इज नाइदर ट्रू, सिंपल है. ये क्यों नहीं होगा देखो, इट इज नॉट कोल्ड और रेनिंग. Sir, it will be option A only. ऑप्शन ए ही है, इसलिए तो मैंने backup में रखा. क्योंकि डी में सिर्फ रेनिंग दिया है ना, डी में इट इज नॉट रेनिंग नहीं दिया. हाँ, और ये दिया है, इसका मीनिंग आएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, राइट. बट इट इज नॉट कोल्ड और रेनिंग,
इट इज कोल्ड और रेनिंग, बट इट इज नॉट कोल्ड दिया है ना, सो फोर्थ में नहीं, डी नहीं आएगा, ए ही आएगा. नेक्स्ट. Okay, I think few questions we have missed. Now this is also the same thing, but यहाँ पर conditional दिया है, ये solve करो. 18B. Yeah. P क्या बोल रहा है? Price increases. Q है demand falls. Okay. Now if price increases means पहला P है, then demand falls, Q, P conditional Q, तो ये आएगा. Price increases if and only if BAC. Yes sir, BS. demand falls. Sir, A. A. Demand does not falls. Demand falls means demand does not falls means negation Q. Then Option C, sir. price does C, not C. increases. Sir, Price option does C. not increases. Negation P, right? So ये option दिख रहा है आपको, negation Q, conditional Option negation C. P. Option Yeah, C. option C. Understood? अगर ये option नहीं होता तो क्या होता? आप इसे नेगेशन simplify बाहर कर- ले लेते ना. या नेगेशन बाहर लेके भी कर सकते, बट नेगेशन बाहर लेके कैसे करोगे? देखो, पहला इसे ये कंडीशनल को हटाना पड़ेगा आपको. इट मींस नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन, सॉरी, नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन P आएगा. सो इट इज नेगेशन Q एंड P आ जाएगा. सो नेगेशन Q एंड P भी ऑप्शन अगर होगा तो भी आंसर करेक्ट है. ओके, तो उस टाइम ये नहीं दिया होगा. इंस्टेड ऑफ दिस इफ दे हैव गिवन negation P and negation Q and P, then also the answer is correct. Okay. So just we simplified that condition, right, sir? Yeah. Conditional one. First I have simplified this conditional. Conditional को simplify करने के लिए मैंने and of negation second ले लिया. Negation of negation P बन जाएगा. Okay. अगर ये ऑप्शन है इसके जगह पे, then also it is correct. सर मतलब Yes. ऑप्शंस में डायरेक्ट आंसर दिया होगा ऐसे ही नहीं, उसका सिंप्लीफिकेशन भी दिया हो सकता है. Yes, yes. ऑप्शन में ये भी देंगे या सिंप्लीफाइड फॉर्म में देंगे. तो नहीं आ रहा तो आपको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन मैच करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू. ओके. नेक्स्ट. सेम वे, अभी ये उसका कंटिन्यूएशन है ना वो. 21 तो कंटिन्यू करोगे आप. 22 सॉल्व करो. चलो 22, 23, 24. Yes, what you are asking? Sir, show the value of P and Q so that we can solve. Okay, it is given. Okay, for that question you are telling. Okay, P था, इसके लिए P क्या था? Price increases था ना? C लग रहा है 21st. P था price increases. वही है, सिंप्लीफाई करके दिए. Demand decreases. हाँ, ये simplified है ना? या C तो वही. हाँ, मैंने जो क्वेश्चन दिया था शायद से वही होगा वो. ओके. हाँ, सो ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन. यस सर, C. ऑप्शन सी सर. ऑप्शन Yes, option C. सी, राइट. ऑलरेडी मैंने बताया था, उस टाइप का क्वेश्चन भी आ गया. चलो नेक्स्ट. कैन यू सॉल्व दिस 22nd? 22nd में वैल्यू स्पेसिफाई किया है. देखो 22nd में ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट P एंड Q. P का दिया है F, Q का दिया है T. देन you have to find individual value which one is correct. Okay, now you solve. I will give you 2 minutes. Yes, Option sir. C. Yes, sir. 22nd का C. Okay, okay. सी को देख. P, what is P?
P दिया है false, P is Q F, दिया है Q true. is T. So P की जगह false, Q की जगह true. P की जगह false, Q की जगह true. Sir, ओके, तो इसका आंसर देखो, F and T, and में दोनों भी ट्रू हो गए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. एंड फॉल्स एंड नेगेशन False. T, नेगेशन T मींस ये भी फॉल्स हो गया, दोनों भी एंड फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा. सो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही आएगा. सो इसका भी आंसर फॉल्स बोला है, मींस ये करेक्ट है. सो एनी इन एम, आपको तो पता है एमएसटी सीटी में ओनली वन करेक्ट आंसर होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं. सर 23rd डी है. यस 23rd हाँ 20 सर 23rd डी आ रहा है. ओके, 23rd वाला डी. चलो देखो, P and Q, if P and Q and P, okay, both are true. हाँ, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ. देखो आपको दिया है और ट्रू है, और ट्रू कौन कौन से केसेस में होता है? देखो, और ट्रू कौन कौन से केसेस में होता है, मींस ये TF में होता है, FT में होता है और TT में होता है, राइट? TT तो स्टार्टिंग में ही आएगा ना. सो पहले के लिए 3 केसेस है, राइट? सेकेंड में देखो, सेकेंड में क्या है, एंड भी ट्रू है. एंड कब ट्रू होता है? पहले वाले में ही ट्रू होता है, मींस दोनों भी ट्रू होनी चाहिए. सो डी इज करेक्ट आंसर. ओके, 24th ए आ रहा है. है. या यस 24 देखो, इफ P और Q इज ट्रू दिया है, P और Q ट्रू है, मींस यही केसेस है, राइट? बट इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P. ओके, बट इसको आप नेगेशन क्यू लेते हो, राइट? इसके आप नेगेशन क्यू लेते हो कंडीशनल में. कंडीशनल में नेगेशन क्यू एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको. वेट, सर बी है 25th. नेगेशन क्यू क्या आ जाएगा? F की जगह T आ जाएगा, सॉरी T की जगह F आ जाएगा, F की जगह T आ जाएगा, T की जगह F आ जाएगा, राइट? सो अभी इन दोनों का क्या है, ये जो आंसर्स है इसके साथ कंडीशनल क्यू फॉल्स है. कंडीशनल क्यू फॉल्स के लिए कंडीशनल क्यू फॉल्स है. सो इन दोनों ऑप्शन है, राइट? सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब P और Q ट्रू दिया है तो P और Q की जगह पे ट्रू रख के कंडीशनल Q फॉल्स है तो Q फॉल्स होगा, ऐसे डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं. या करेक्ट ए ऑप्शन है. इसके लिए आपको अगर समझना है तो पूरा ट्रूथ टेबल अगर ड्रॉ करोगे तो भी और समझ में आ जाएगा. सर लेकिन वो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं ना. या सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, बट मुझे अभी आपको एग्जैक्ट बताना है, इसलिए मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहा हूं. और में तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, राइट? सो ऑप्शन आपके पहले 3 ही बच गए. अभी इसके साथ क्यू. ओके, मैं नेगेशन क्यू लेता. वी वर सॉल्विंग व्हिच वन? दिस वन ना? यस ओके, तो मैं नेगेशन ले लिया था अननेसेसरी. एक्चुअली इसके साथ ये है ना क्यू. सो सेकेंड वन इज क्यू. सो और अभी मुझे कंडीशनल, ओके, ये फॉल्स है. सो इसमें फॉल्स कौन सा आ रहा है? देखो सर पहले वो P और Q डैश नहीं है ना वो. ये फॉल्स यही आ रहा है, ये फॉल्स यही आ रहा है. सो इट मींस ये कंडीशन करेक्ट है. सो P ट्रू है एंड Q फॉल्स है. सो P ट्रू है एंड Q फॉल्स है. P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा. अंडरस्टूड? सर 25th बी है क्या? 25th बोल रहे हो आप? हाँ बी आ रहा है. हाँ 25th बी. सो आई थिंक 24th समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. के साथ या यही एक ऑप्शन बच रहा है जहां पर फॉल्स आ रहा है. सो P का T और Q का F होना चाहिए. सो नाउ 25th के ऑप्शंस पहले मैं चेक करता हूं. वेट,
हाँ अभी देखो, 25th में क्या दिया, इफ द स्टेटमेंट पैटर्न, 25th हो गया ना अपना। हाँ सर बी है। अच्छा 25th तो उसी B टाइप है का है, बाई कंडीशनल है यहाँ पर, बाई कंडीशनल में क्यू है ना, तो ये भी कर पाओगे आप। सो ऑप्शन क्या है इसका, बी। बी। Okay. So 24th and 25th, the same only here it is biconditional. Now next, if the statement pattern P, सर वेट, Q both are true, R and S. Now here four statements are there, P, Q, R, S. So if there are four statements, then you know how to do. Okay. So जिधर आपको P दिख रहा है या Q दिख रहा है, true substitute कर दो. So I am writing here T. So blue pen तो सर 26 डी आ रहा है। So ये true, ये true. Q P Q तो true है ना, ये भी true है. R false है, R false है और S भी false है. Okay. So इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा. अभी इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये ब्रैकेट है, मुझे बताए दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है, सो इट इज ट्रू. false, कंडीशनल ये क्या है, सिंगल में False. सेकंड वाला जो है वो है and third is true. दोनों भी फॉल्स है तो ट्रू है. ओके सो यहाँ तक तो आ गए हम. अब जिसमें TF है तो सेकंड वाला आएगा False, फॉल्स। और इसमें true, ट्रू आएगा. डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन. देखो इंस्टेड ऑफ टी यहाँ पर 1 भी देते, इंस्टेड ऑफ टी 1 भी देते तो भी करेक्ट है क्योंकि t इज इक्वल्स टू 1. ओके सो 24 एक्सप्लेन करो ना, 24th वाला एक्सप्लेन करना है. ओके 24 की जगह मैं 25th वाला एक्सप्लेन करूं तो चलेगा क्योंकि सेम ही तो है. चलो 24th के लिए सिर्फ इधर ये सिंगल एरो था, राइट. तो देख बेटा 24th वाला एक्सप्लेन करो या 25th वाला. ओके 25th वाला कर देता हूं. चलो तो यही है द स्टेटमेंट पैटर्न एंड में. ओके इफ स्टेटमेंट पैटर्न एंड दिस बोथ आर फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q. देखो मुझे बताइए फॉल्स कब होता है, एंड में फॉल्स कब हो सकता है. एंड में फॉल्स हो सकता है, पहले में तो नहीं हो सकता, सेकंड में, क्योंकि दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बाकी सभी केसेस में फॉल्स. मींस पहले में 3 केसेस मिलेंगे आपको. सो TF वाला एक मिलेगा, FT वाला एक मिलेगा और FF वाला एक मिलेगा. मींस पहला तो हट गया. ओके 2 स्टेटमेंट है. और दूसरा क्या दिया है, इसी के साथ बाई कंडीशनल Q है. बाई कंडीशनल Q अगर Q दे दिया ये भी फॉल्स है. सो फॉल्स कब हो सकता है, मींस ये 2 बच गए आपके पास, ये 2 बच गए क्योंकि बाई कंडीशनल में तो ये ट्रू आ जाएगा, राइट. सो ये 2 TF या FT दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं. TF या FT, TF या पहला है, अच्छा FT भी आ रहा है, P और Q. ओके देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली. तो ट्रूथ टेबल बना दो फिर, क्योंकि बाई कंडीशनल दिया है, एंड ही दिया है, एंड में ओके फॉल्स दिया है ना, फॉल्स तो ये केसेस बन गए, राइट. और दूसरा भी फॉल्स दिया है. सो कंडीशनल ने बाई कंडीशनल दिया है यहाँ पर, राइट. सो बाई कंडीशनल तो ओके Q के साथ बाई कंडीशनल है, Q के साथ बाई कंडीशनल है मींस ये F है फिर से इधर. सो इसका जो आंसर है, पहला आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा एंड वाला. सो T इसका का आंसर होगा फॉल्स, इसका भी होगा फॉल्स, इसका भी होगा फॉल्स. सो फिर से आपको बाई कंडीशनल Q लेना है. डायरेक्ट वैल्यू Q कर सकते हैं. कौन सी डायरेक्ट वैल्यू, या डायरेक्ट पूरा ट्रूथ टेबल ही बना दो हो जाएगा. डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके डायरेक्ट वैल्यू भी कुछ जो आंसर में दिए हुए. ये फॉल्स है, फॉल्स बाई कंडीशनल. अभी Q की वैल्यू क्या आ सकती है, Q की वैल्यू आपको चारों ऑप्शन लेना पड़ेगा ना फिर तो उस केस में Q क्या है आपका. sir.
हाँ बोलो. P and Q is false, right? So Q with P and Q is false. हाँ. And P and Q with biconditional with Q is also false. So Q will be false only, right? ओके सो Then क्यू से तो पी क्या आएगा. चलो फटाक से, इतना सोचने से बेटर है ट्रुथ टेबल ही बना दो ना, वो बेटर रहेगा. देखो पी क्यू. अभी मुझे इसके साथ बाई कंडीशनल लेना है क्यू. सो इसका और इसका बाई कंडीशनल, इसका और इसका बाई कंडीशनल में ये ट्रू आ जाएगा, इसका और इसका बाई कंडीशनल में ये ट्रू आ जाएगा, इसका इसका बाई कंडीशनल में ये फॉल्स आ जाएगा, ये इसका ट्रू आ जाएगा. सो हमें क्या करना है, ये देन फॉल्स दिया है, राइट, दैट इज आल्सो फॉल्स. सो आपका यही ऑप्शन बच जाएगा, क्योंकि पहले में तो ये हट गया था, पहले में तो ये हट गया फर्स्ट वाला, राइट. सो बाकी इन तीनों केसेस में कौन सा फॉल्स है, तो यही है टीएफ वाला, सॉरी ये वाला एफटी वाला. सो एफ एंड टी, फर्स्ट वन इज एफ, सेकेंड वन इज टी. सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा. कौन सा क्वेश्चन है, 25 सर 25 बी बराबर है, करेक्ट, बी ऑप्शन. हाँ सर 27F है, हाँ 28 भी है सर. sir 27B. या 27th यू आर सॉल्विंग, ओके. 27th आ रहा है बी आपका. 26th वाला आ गया आपको, हाँ डी डी सॉल्व करके बताया था, राइट. 27B, 28A, 27 29, 28A, 29A, 29th ए, ठीक. 30B. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पी और क्यू की जगह टी रखना है, पी और क्यू की जगह टी रखना है, और आर और एस की जगह एफ रख दो. सिंपलीफाई, यू विल गेट द आंसर. Sir, and 30B. 28B है ना, 28F आएगा ना, 28 वाला बी आ रहा है, B है ना. या अच्छा. 28 वाला बी है. यस सर बी आ रहा है. यस, सर 30 है, B है, 30 भी B है. 30 Yes, भी sir. बी है. 30B. 30 वाला बी. सो सी और डी के ऑप्शन की जरूरत नहीं थी आपको. चलो ठीक है, C और D कभी मतलब आएगा. देखना है आपको सी और डी कि टी एफ. तो बाकी क्या बच गया, 0 1 क्या देखते हैं, ऑप्शंस तो क्या दिए देखते हैं. या सो एफ को 0 ऑप्शन नहीं दिया है, सो ओनली दिस. ठीक. नाउ सॉल्व 31 का ए. One boy has written 31A. So you solve 31, 32. Now see, look here. I hope you have solved this 30, 31 and 32. Any doubt? So I will solve this 31. See what is given. P and Q are true. So negation true, negation T and T and negation false. This was the first bracket. Or Q is true by conditional. T is true. Conditional, negation of false or false. This was the thing. So this was opposite of T is false and true or this is true, conditional, negation F or negation F is true or F is true again.
Okay. Now see, and means false first because both are opposite. T and F and T is false. So false and true. False and true again false. So false or this true conditional true, that is true. So true, false or true, that is true. So T, A option is correct. Okay. Any doubt? 31 was A because P and Q were true and R and S was false. So 32. Now solve 32. Yes. Yes, now I got. False. Yes. Look here. So 32, which option you got? True. Yeah, A. 32 is very easy then. Because it is true or true conditional false. So इसमें तो ये false ही हो जाएगा. तो इसमें और में तो true हो जाएगा. So A option is correct. Okay. Next. Same with this 33. Okay. Now you solve 33, 34 and 35. Now see, once again I will explain this. 34th question. 34th may P any statement means P can take any value, true or false. Then what is the answer of this? If P is true, then its negation is false. और अगर होगा at least one is true means true ही आ रहा है. So अगर true है तो true आ रहा है. अगर false भी ले लिया मैंने तो ये true बन जाएगा. So true आ रहा है means both the cases answer is coming true. Means P if it is any statement the answer is true, it means tautology है. अगर F आ रहा हो तो contingency. A contradiction or paradox वो तो है नहीं. So 35th, look here. 35th में क्या दिया है? P is any statement, फिर से वही है. And में क्या आता है? अगर P true है तो false हो जाएगा. तो and में तो false ही होगा. अगर P false है तो भी ये false ही हो जाएगा. Means both the cases answer is false. False means contradiction. So the answer is B. Understood?
This was for 35th. This was for 34th. Now you try to solve this 36th. 36th वाला solve करो. हाँ, let's see. Question number 36. देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है. P क्या कहता है? If a man is rich, then he is happy. Man is rich, then he is happy. तो ऐसा कंसिडर करते थे P वाला. ओके, फर्स्ट वन. Q क्या है? If man is not rich, if man is not rich, then he is not happy. Try करो. Then as is given, if man is happy, then he is rich. Man is happy means पहला Q, then he is rich. Okay. Then the pair of statements having the same meaning or equivalent are. कौन से equivalent है? मुझे बताइए. इसे अगर मैं नेगेशन कॉमन निकालूं बाहर तो सिंप्लीफाई करो. PQ and RS. Wait 1 minute. So in this case, here you have to draw the truth table and identify which one are equivalents, or you can convert into and or form also. So it is P and negation Q पहला वाला. सेकेंड वाला अगर आप नेगेशन बाहर निकाल लेते हो तो भी देखो, और Q and negation P कहाँ आ जाएगा? Q and negation P, right? So after drawing truth table, which are giving the same things, so PQ and RS, so which are having the equivalent? PQ same है और RS किस चीज के लिए? एक तो PQ true होना चाहिए, then RS also true. Okay, so likewise from truth table only you can solve this. So for the equivalent meaning, that is the same meaning, we have to draw truth table and see where you're getting value as T, right, sir? Yes, yes. Okay, sir. Next, 37th. The negation of this statement. Negation of the statement this is. ये तो बहुत easy है. देखो, negation P और negation Q. इसका हमें negation find out करना है. Suppose that this is X और ये Y है. तो X और Y का negation तो आपको पता है, negation X and negation Y. So likewise, it is negation of negation first और का बन जाएगा and negation of second. So it will be P and Q. So P and Q. D option. So 37. 38. Look here. The negation of the statement is negation of this statement. So देखो, पहला अगर मैं इसे कंसिडर कर देता हूं X, ओके, आई हैव टू फाइंड इट्स नेगेशन. मुझे बताइए, ये मैं फिर से इसे X कंसिडर कर रहा हूं, इसे X कंसिडर कर रहा हूं, इसे Y कंसिडर कर रहा हूं. अगर मुझे इसका नेगेशन फाइंड आउट करना है तो पहले का नेगेशन और का बन जाएगा एंड, और सेकेंड का नेगेशन, राइट? सो पहले का नेगेशन मींस नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q, और का बन जाएगा एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q. अभी मुझे फिर से इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो नेगेशन ऑफ P इज P ओनली, ओके, एंड का बन जाएगा और नेगेशन ऑफ Q एंड
here negation of p is negation p, और का बन जाएगा and का बन जाएगा और, negation of negation q is q only. So again अभी हमें ये सिंप्लीफाई करना है, सी which was at this one, no? So again further you have to simplify because answer is not matching. Okay, और p और भी नहीं, negation q भी नहीं आ रहा है. So again if you further simplify you will get the answer. So this was question number 38. So how we further simplify that? 38 का b. 38 को सर further simplification कैसे करें? अच्छा 38 का बोल रहे हैं ना? हाँ सर. देख बेटा ये मीनिंग है, दिस इज मीनिंग ऑफ बाई कंडीशनल. ये बाई कंडीशनल का मीनिंग है, हमने देखा था ना कंडीशनल का मीनिंग जो था ना. हाँ वो P and yeah, this is meaning of conditional. yes. Okay. ठीक है. Got it sir. Now next try to solve this 39th. So 39 Yes, C. Yeah, 39th actually dual है, dual out of portion है. I know that one boy has written correct that it is out of portion. Then also I'll explain. See here 39 ड्यूअल में क्या करना है आपको, एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से रिप्लेस करना है. सो P और Q एंड नेगेशन एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू, है ना. P और का बन जाएगा एंड नेगेशन Q. सो दिस ऑप्शन P और Q पहला में एक है, सो ये दोनों में से देखो कौन सा है. नेक्स्ट फर्दर Q तो है इज इक्वल्स टू P एंड आ जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी, 39 का सी आएगा. सर 40 का बी आएगा क्या? 40 का देखो 40 का P है ना, और का एंड बन जाएगा Q, और का फिर से एंड बन जाएगा इज इक्वल्स टू P, और का फिर से एंड बन जाएगा, राइट. So this answer, if it is not there, then again further you have to simplify. So P and किधर आ रहा है आपका? P and में एक आ रहा है या फिर एक आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है सर. Okay. Wait. Option D you are telling? नो सर बी. बी. हाँ. Okay. हाँ मैं वही तो बोला. So A और B. Now up to this Q and R, yes, is equals to P and Q. और का बन जाएगा ये and R, so B. Okay, ठीक, correct है. Now question number 41. So actually this 39 and 40 was from deleted part, but this was there in Marvel book, so I have solved that. Now 41 and 42 negation वाले हैं. देखो 41 क्या है, negation of the statement, it is false or that is true. Okay, negation of the statement, it is false. So P statement it is it is not false. हाँ उल्टा ही लिखना है. This is false, this is true. So this is true कहाँ से शुरू हो रहा है, this is true यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, राइट, और यहाँ से आ रहा है. सो तीनों में से और का नेगेशन क्या बन जाएगा, एंड. सो एंड वाला यहाँ पर है, सो ये दो बच गए ऑप्शंस. दैट इज ट्रू.
So that is false. That is false. Okay. That is false है ना, तो this का नहीं आएगा, that आ जाएगा, right? So C option correct आ जाएगा, because that this दिया है ना. Now 40 second solve करो. D Negation of the option. statement. Yes. D. 42nd वाला D आ रहा है आपका, ठीक है. Negation of the statement. This is true and that is false. Same है तो. Negation. This is false आ जाएगा starting में. This is false में कहाँ पर है? ये दो options है. And का बन जाएगा or. So D option. Okay. Yes, sir. हाँ. Next. Any doubt? If you have any doubt, you can write in the chat box. PYQ करेंगे थोड़ा. चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पहले. PYQ कहाँ पर दिया है? Yes. So चलो PYQ करेंगे. Is it visible? Yes, sir. चलो रिकॉर्डिंग चल रही है. हाँ. The equivalence of this is. इक्विवेलेंस स्टेटमेंट फाइंड आउट करना कितना इजी है. देखो मुझे बताइए, उसे सिंप्लीफाई भी करोगे तो भी चलेगा. लिटरल मीनिंग में भी नहीं आ रहा है वो, राइट, क्योंकि P ही है, खुद के साथ ही है. चलो इसका मीनिंग है P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन P. ओके, सिंगल है ना, नेगेशन नहीं है वो. तो इसका मीनिंग हो जाएगा नेगेशन, पहले का नेगेशन और दूसरा, और इसका एंड और में अगर कन्वर्ट करते हो तो पहले का नेगेशन मींस P और सेकेंड. नाउ यू टेल मी दिस इज P ओनली. ओके. नाउ और में कोई भी होगा तो P ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा. और में ये भी खुद ही आ जाएगा, P और P. सो द ऑप्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो हाउ इट इज देयर. सी द इक्विवेलेंस ऑफ इज. ओके, तो हमें इसका भी ट्रुथ टेबल निकालना पड़ेगा, इसका भी ट्रुथ टेबल निकालना ही पड़ेगा. दैट इज द सेकेंड थिंग. तो इसका आंसर अगर हमें फाइंड आउट कर रहे हैं तो P आ रहा है, राइट. सो P यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पर तो P ऑप्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं कर रहा है. सो P और T. सो ऑलवेज T. अगर F भी होगा तो भी T ही आ जाएगा. सो इज इट ऑप्शन C? लेट्स चेक. 64th. false होता. हाँ. ये Yes. अगर false होता. The given answer. हाँ बोलो. सर मुझे Yeah. एक चीज नहीं समझ आ रहा है कि इससे इक्विवेलेंस का तो वैल्यू P आ रहा है, लेकिन अभी अगर P false होता है तो C के बराबर C ऑप्शन को अगर एवेल्युएट करेंगे तो वो तो ट्रू देगा ना सर. Yes, understood. तो दो केसेस लेना पड़ेगा. I got your answer, because if P is true, then in that case it is true. But Yes. if it is false, तो true आ रहा है आंसर. हाँ. So it is not giving the P answer. Yes sir. Yeah. So there are only two chances. Either P is true. सर मेरे को क्या लगता है कि जो C ऑप्शन है उसमें P और जो ट्रू लिखा है उसकी जगह पे P एंड ट्रू लिखा होता तो P आ जाता था. And होना Yes sir, and आएगा. And आएगा. Actually this is mistake. It should be and होगा तो ही आएगा. Okay. Yes sir, वही. Now solve 65th. सर थोड़ा जूम करो ना. हाँ, एक मिनट. आप में से राम कौन है?
जो टैलेंटेड भी है, रिच भी है, सक्सेसफुल भी है. You want to become Ram or Sham? Yes. I think all want to become Ram. See, Ram is talented, Ram is rich, and Ram is successful. Ram is neither talented nor rich, and hence he is not successful. Is represented by. अभी देखो ये कौन सा रिप्रेजेंट किया है. सभी गुड क्वालिटीज ए है क्या? रिप्रेजेंट करता है राम. Yes, Now, A है. Ram is neither talented nor rich, neither talented nor rich, and hence he is not successful. And hence he is not successful. देखो लास्ट नॉट सक्सेसफुल का ये एक ऑप्शन रहता है और ये एक. सो आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी. ओके, अभी फर्स्ट क्या है? राम इज नीदर टैलेंटेड नॉर रिच. राम इज नीदर टैलेंटेड नॉर रिच एंड आ रहा है, मींस बी ऑप्शन आएगा आपका. सर ए आएगा. आंसर ए है. देखो ना सर. अरे ये आएगा सर, ये ये आएगा. सर प्रीवियस Neither क्वेश्चन nor ना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा आया था तो neither nor तो हम लोग एंड लेते हैं ना सर. ठीक है, ठीक है. सो इंडिविजुअल में नाइदर टैलेंटेड हाँ. एंड नॉट. ठीक है. And hence के लिए वो कंडीशन. तो इसका मीनिंग होगा ही इज नॉट टैलेंटेड एंड नॉट रिच. वो Yes, मीनिंग sir. हो जाएगा. या हाँ. सो दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट ऑप्शन. राइट. देन एक्चुअली ड्यूअलर सर्किट दोनों भी नहीं है. सो 66 यू कैन स्किप. इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व. सर बी आ रहा है 66 का. बी. देखो इसका पहला स्टेटमेंट देखो. सो पी वेट पी एंड क्यू और आर, इसका ड्यूअल. दिस इज द एल. सीरीज में पैरेलल, सीरीज में क्या होता है? ये पैरेलल है ना, एंड पैरेलल में और होता है. देखो सीरीज में होगा तो एंड, ओके, और ये दो पैरेलल है तो और. समझा? यस सर. यस. देख ये दो पैरेलल में है और किसके साथ है? फर्स्ट के साथ. सो इसका ड्यूअल में क्या करना है? एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से रिप्लेस करना है ना. सो दिस इज द आंसर. अगर मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. बी पी और. सो विच वन? दिस वन, सेकंड बी. सर No, ए से B नहीं, मैच A. A is the correct. Okay. यस सर. हाँ. सर अगर डुअल नहीं पूछा होता तो बी होता. हाँ, ड्यूअल नहीं पूछा होगा तो ये वाला. ओके, ठीक. नाउ नेगेशन ऑफ दिस इज. देखो Yeah. कंडीशनल का नेगेशन आपको तो पता है. अगर ये दिया है, सपोज दैट अगर मेरा ये x है और ये y है, सॉरी x कंडीशनल y अगर होता तो फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का नेगेशन होता, राइट. तो फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का नेगेशन, राइट. फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का नेगेशन. सो नेगेशन P एंड नेगेशन Q भी हो सकता है, या फिर इसका इक्विवेलेंट होता है नेगेशन. अगर आप बाहर निकालोगे तो P और Q ये भी हो सकता है. सो ऑप्शन में कौन सा है? नेगेशन P एंड नेगेशन Q दिया है. यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. यस सर. हाँ, चलो ब्लैक में भी बता देता हूँ. चलो, सो बिकॉज इफ इट इज नॉट विजिबल देन देखो इसे अगर मैंने x कंसिडर किया और सेकंड को y कंसिडर किया तो उसका नेगेशन होता है कंडीशनल का पहला एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकंड. सो पहला नेगेशन पे एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकंड. ओके, तो ये ऑप्शन होगा तो देखो, नहीं होगा तो इसे सिंप्लीफाइड वर्जन ये है. नेगेशन बाहर निकालोगे तो और एंड का और बन जाएगा. सो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट है. सो ये तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बी. नाउ सॉल्व दिस, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस. ए आ रहा है. अच्छा, या सिंप्लीफाई करो
ये एक बता देता हूं मैं। सी, इसे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, एक्चुअली क्लियर विजिबल नहीं है। Now it is P and Q. I am writing first as it is statement. Okay. अभी मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है. So first I'll write P and भी ले सकता हूँ and और Q या फिर ऐसा करो P और and Q or okay. Now you simplify, you will get the answer. सर मैंने इसमें क्या किया, मैंने P को ट्रू माना और Q को फॉल्स माना और फिर सॉल्व किया। बट तूने P को ट्रू और Q को फॉल्स ऐसा क्यों कंसिडर किया? क्योंकि अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं ना सर, पर मुझे एंड में फिर सिर्फ ट्रू आया ना, तो मतलब मैंने फिर सब्स्टिट्यूट करके P कर दिया तो A आ रहा है। आंसर सी आ रहा है। ठीक है. Actually there are 4 cases, so you cannot take as per your choice. So here you have to use algebra of statement only. Okay. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके लिए एक्चुअली यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, राइट? इंडिविजुअल अगर होता P एंड और एक्स वाई जेड ले रहा हूँ, चलो मैं अगर इंडिविजुअल अगर होता तो फर्स्ट एंड सेकेंड और फर्स्ट ना एंड सेकेंड, राइट? ये होता. तो इसे अगर आप फर्स्ट कंसिडर करते हो, इसे अगर आप फर्स्ट कंसिडर कर देते हो और इसे सेकेंड कंसिडर करते हो तो आपका आ जाएगा P एंड Q, ब्लैक से लिख देता हूं मैं, राइट? दोनों में सिंबल ये एंड वाला है, राइट? सपोज दैट दिस इज और है यहाँ पर, और सेकेंड वाला, सेकेंड में से फर्स्ट, दैट इज P, है ना? देन और बीच वाला एंड फर्स्ट और नेगेशन Q. तो ये बन जाएगा आपका इंडिविजुअल. अंडरस्टूड? देखो आपके पास एक रूल है. हाँ बोलो. डिस्ट्रीब्यूटिव अगर लॉ अगर आप यूज करते हो सर, इसे तो वेन डायग्राम से कर सकते थे ना, डायरेक्ट हो जाता, या वेन डायग्राम इजी हो जाता है। अच्छा, वेन डायग्राम से करना चाहते हो आप? हाँ सर, उससे डायरेक्ट आ गया ऑप्शन ए सेट वाली. हाँ, यू कैन यूज इफ यू नो अनदर मेथड दैट आल्सो यू कैन यूज. ओके, क्योंकि एक इंडिविजुअल होगा एक्स एंड वाई और जेड अगर होगा तो एक्स एंड वाई और एक्स एंड जेड आता है, राइट? सो मैंने इसे फर्स्ट कंसिडर किया और इसे सेकंड कंसिडर किया, तो फर्स्ट एज इट इज लिखा और सेकंड एंड ये फर्स्ट एंड दिस. सो अगेन इफ यू सिंप्लीफाई then you will get the answer. So the option correct was what? A option correct ना? Yes. A आया था. Okay. Next. Time क्या हो गया? 6:15. So I hope you understood this part.
69 का B है. B option. Yes sir. So 69. 69B, 70C. 69B, 70C और 71 का भी आंसर बता देता हूँ. 70 ऐसे ही करेंगे ना जब आपने अभी बताया. या 70 वही सेम. सिंप्लीफाई कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके. ओके ठीक है. आई होप you understood this part and this much only from PYQ in this marvel. So answers भी चाहिए तो ये पूरा मैं PDF आपके साथ शेयर करूंगा. Within 10 to 15 minutes you will get this PDF. Okay. If you have any doubt you can ask me now. तो 68 का एक बार आंसर बता दीजिए. 68 वाला 68 वाला आएगा A. Okay sir. Thank you. Bye sir. Thank you. Okay. Bye. And if you have any doubt, you can ask and be there for next lecture also. Next topic कौन सा है प्लानर के हिसाब से? Wait, let me check. One minute. Matrices. Okay. So next topic is matrices. So be there. Thank you.